Hello to the Hathodi classes. I am your tutor Neha, and today we are studying the topic food and where does it come from. It's of it's from class standard 6 science. So let's start the topic without any further ado. Okay, so the heading is food and where does it come from. What did you eat? What did you eat at home? What did you eat at What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food or different times, isn't it? So, as you know, we don't eat the same food every day. हम लोग रोज़ एक खाना नहीं खाते हैं और ना ही हमारे फ्रेंड्स एक खाना खाते हैं जो हम खाते हैं दोनों का कभी सेम रहता बहुत लो चांस है कि सेम रहता है बट ऐसा नहीं है कि जो हमने कल खाया वही सेम चीज़ आज भी हम लोग खा रहे हैं और हर समय वही मतलब डिफरेंट टाइम में सेम खाना ऐसा तो नहीं होता अलग अलग टाइम में डिफरेंट टाइम जैसे हर एक फूड का रहता है तो अलग अलग टाइप के खाने उस टाइम के हिसाब से मिलते हैं सो फूड वैरायटी देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी in the food that we eat. What are these food items made of? Thinking about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two material or ingredients are needed to prepare a dish or boiled rice. So हमारे फूड यानी कि खाने में बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप्स की वैरायटी रहती है और बहुत ही टाइप्स की वैरायटी रहती है तो ये बनते क्या चीज़ है जैसे कि अगर हम दाल ही मतलब राइस बनाने जाते हैं चावल तो चावल के लिए हमें चाहिए पानी और चावल हमें रॉ राइस को अच्छे से धो लेना है और बॉईल कर लेना पानी में बस दो इंग्रेडिएंट्स सेम विथ दाल हमें दाल चाहिए पानी चाहिए और कुछ कुछ हल्दी वगैरह मसाले नमक चाहिए और दाल को प्रेशर लगाना दाल बन जाता है On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, sauce, spices, oil and so on. और वैसे ही जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं तो सब्जियों के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए मतलब बहुत सारी तो नहीं लेकिन हाँ चाहिए जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल मसाला और नमक तेल और भी बहुत सारी चीज़ें So, what do we find? Do we find some ingredient common for different food? This, okay. Food material and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredient that we listed in table. Fruit and vegetable, for instance. Where do they come from? Plant. Of course, what are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which gave us these grains. And then there are food items like milk, egg and meat which come from animal. Okay, so ये मे भी इजी हो सकता है कि कुछ कुछ इंग्रेडिएंट जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल रहे आते कहाँ से सो फ्रूट एंड वेजिटेबल जो भी है हमें जेन्युइन सी बात है कि प्लांट से आता है क्योंकि हम सीड लगाते हैं उसे अच्छे से पानी देते हैं फिर उसका प्लांट होता है और प्लांट से फिर हम लोग फ्रूट लेते हैं और फ्रूट या वेजिटेबल जो भी तो जैसे राइस और वीट ही होगा तो अगर आप कोई बड़े बड़े फील्ड यानी कि खेत में जाइएगा तो देखिएगा कि राइस प्लांटेड वहाँ पे किया गया है एक सीज़न आने के बाद उसे क्रॉप किया जाता है अच्छे से फिर उसके थ्रू राइस बनता है फिर देर उसके अलावा भी हमारे पास आइटम्स हैं जैसे मिल्क एग मीट जो कि एनिमल्स आता है जैसे मिल्क आता है काउ से एग आता है हमारा चिकन से मीट आता है हमारा कोई भी एनिमल से जैसे कि गोट चिकन
So let's see the table. 1.3 ingredients used to prepare food item and their sources. Okay. For example, food item idli. Ingredients to prepare for idli are rice, chawal, urad dal, salt, water. And the sources of the all these four of them are plant. For chicken curry, there is needed chicken, spices, oil or ghee, plant. So the sources for the chicken it's animal. For oil or ghee it's plant or maybe animal. Kheer. For kheer we need milk, rice, sugar. So milk comes from an animal, rice comes from plant. What do we conclude? Plant are the sources of food. Plant जो हमारे sources होते हैं food के. Ingredients like grain, cereals, vegetable and fruits. Animals provide us with milk and meat produces and eggs. Goats and buffaloes are some common animals milk, which gives us milk, which gives us milk, and milk products like butter, cream, cheese, and curd are used all over the world. Can you name some of the animal which gives us milk? Okay, so the milk we produces butter, cheese, कर्ड, दही जो कि हर जगह यूज़ किए जाते हैं. यहाँ से बाहर हर जगह बहुत सारे फूड में यूज़ किया जाता है. तो और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो हमें मिल्क देते हैं. फॉर एग्जांपल काउ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा. एंड लेट्स सी द पार्ट ऑफ द प्लांट. So as we see, the most important part for the plant is root, and the primary root यानी कि सबसे पहले first root is the most important part for a plant to grow. There comes when it starts to grow, मतलब जब ये बड़ा होने लगता है तो secondary root. जैसे जैसे plant हमारा बड़ा होता है वो एक बड देता है. बड यानी कि एक छोटा सा जिसके थ्रू फ्लावर वगैरह हो तो वो. और ये जो थोड़ी सी पतली सी ग्रीन सी चीज़ दिख रही है उसे हमें स्टेम कहते हैं. और जो हमारा ये ग्रीन ग्रीन लीव्स है इन्हें हमें लीफ कहते हैं. ये बड से हमारे फ्लावर निकलता है और फिर यही प्लांट हमें एक फ्रूट देता है. और उस फ्रूट के ऊपर एक अच्छा सा फिर आगे बढ़ते बढ़ते फ्लावर भी रहता है. और ये जो पार्ट है हमारा इसे हम नोड कहते हैं, इंटरनोड, बीच के पार्ट को. सो फ्रॉम द बैक व्हेन हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उसे रूट से लगाते हैं. तो जो उसका स्टार्टिंग में जब हम उसे प्लांट करते हैं तो उसके रूट को प्राइमरी रूट कहते हैं. जैसे जैसे वो प्लांट बड़ा रहता है तो उसके रूट्स भी बढ़ते हैं और उससे सेकेंडरी रूट कहते हैं. और जैसे हमारा प्लांट बढ़ने लगता है तो वो धीरे धीरे उसमें स्टेम आता है, यानी कि एक पतली सी डंटी जिससे मतलब वो प्लांट पूरा रहता है. फिर वो प्लांट में पत्ते होते हैं, लीफ. और फिर वो प्लांट बर्ड्स देता है. बर्ड्स जिसमें से फ्रूट हमारे निकलते हैं. छोटे छोटे बर्ड्स रहते हैं. और जो बीच का छोटे सा सिमिलर पार्ट रहता है उसे हम लोग नोड कहते हैं और इंटरनोड. फिर जो वो बर्ड्स रहते हैं उससे हमारे फ्रूट्स निकलते हैं. और जैसे वो फ्रूट्स निकलते हैं तो वो प्लांट में कुछ कुछ फ्लावर्स भी होते हैं तो वो फ्लावर्स भी रहता है. ओके, प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोड्यूसेस एज फूड. ओके, plant are one sources of our food. Which parts of it? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plant.
Sometimes roots, sometimes same in flowers. Have you ever eaten pumpkin flower dipped in rice paste and fried? Some plants have two or more edible parts. ये plants जो है हमारा source of food, our food होता है. Which हम जैसे प्लांट से बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि लीफी वेजिटेबल भी, जैसे कि ये कैबेज, हम बहुत सारे रूट्स का भी कुछ कुछ खाते हैं. और फिर हम पम्पकिन के जो भी वो ड्राइड होने वाले फ्लावर रहते हैं उन्हें राइस पेस्ट के साथ बहुत अच्छा लगता है. सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट. बहुत सारे प्लांट्स के दो या दो से ज़्यादा एडिबल पार्ट होता है. एडिबल मीन्स कि जिसे आप चबा सकते हैं या फिर खा सकते हैं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड. जैसे कि सरसों का जो पौधा होता है या फिर जो भी होता है सरसों वाला, तो उसके जो सीड्स रहते हैं छोटे छोटे येलो येलो मस्टर्ड सीड्स, उससे हम ऑयल बना सकते हैं. और उसके जो मतलब लीव्स रहते हैं उसका हम वेजिटेबल के थ्रू, सरसों के साग, मक्के की रोटी, सरसों का साग, कैन उसके बाद बनाना. लेट्स सी, जैसे बनाना का एक फ्लावर होता है, बड, उसके बाद फिर उससे फ्रूट निकलता है तो बनाना बनता है. तो उसका जो बड वाला पार्ट रहता है उसके भी सब्जी बनाया जा सकता है. ब्रिंजल करी. सो इंग्रेडिएंट का ब्रिंजल, चिली और स्पाइस, oil from groundnut, mustard, soybean and any other plant. Fruit, chana and its sprout. From all the food items have you listed activity 4, you choose those items whose ingredient are obtained from ground. Which part of the plant? And for this and last plant as well. Okay, so this is, take some dry seeds of moong or chana, put a small quantity of seed in container filled with water, leave this aside for next, drain the water completely and leave the seed in the vessel. Wrap them in a piece of white cloth set aside. Do you observe the changes? A small white structure may have grown out of this, so the seeds have sprouted. If not, wash the seed, drain the water and leave them aside for another day. Okay, so in activity 5 it's saying that we should, हमें एक मतलब एक थोड़ा सा मूंग या फिर चना छोटी सी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में एक अच्छे से कंटेनर यानी कि बर्तन में पानी डाल के उसे फूलने दे देना और एक साइड कर के रख देना एक दिन के लिए. उसके बाद जब नेक्स्ट डे आता है हमें वो पानी धो देना है, फिर अच्छे से उसे वॉश कर लेना है, फिर उसे ड्राई करके एक कपड़े में रैप कर देना और एक दूसरे मतलब फिर एक दिन के लिए छोड़ देना. उसके नेक्स्ट डे आपको उस मूंग या चने पे एक छोटा छोटा वाइट सा कुछ निकला हुआ दिखेगा जिसे हम लोग स्प्राउट्स कहते हैं. और अगर वो ना निकले फिर उसे एक बार धो करके फिर एक दिन के लिए किसी सूखे कपड़े में साइड बांध के साइड रख देना. कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ. After washing these sprouted seed, you can eat them. They can also be boiled, add some spices and get a tasty snack meal. Same with this seeds. You can wash it, this sprouted seed. You can, if you want to eat it raw, you can eat it. और अगर अच्छे से स्नैक की तरह से खाना है तो उसे थोड़ा सा बॉईल करके थोड़ा सा स्पाइस यानी कि मसाला वसाला डाल के अच्छा खासा स्नैक आपका शाम का या फिर सुबह का हो सकता है. और डू यू नो where honey comes from or how it is produced? Have you seen a beehive where so many bees kept buzzing out? Bee collects nectar, sweet juice from flower, convert it into honey and store it in their hive. So क्या आप लोग को पता हनी कहाँ से आता है और ये बनता कैसे है? कभी बी हाइव या ऐसा कुछ देखा जिसमें बहुत सारे बेज मतलब मधुमक्खी बज़ करते रहते, इधर उधर घूमते रहते ज़ करके? तो बहुत जो ये मधुमक्खियाँ रहती हैं वो जैसे फ्लावर का जो ना जो मतलब उनका मोस्टली फूड वही रहता है कि फ्लावर का जो जूस है वो उसे चूस के खाती है, यानी कि उसका नेक्टर को, फ्लावर के जूस को हम लोग नेक्टर कहते हैं यहाँ पर.
तो वो उसे खाती है और उसको कन्वर्ट करती है हनी में, और जो उसे कन्वर्ट करने जो वो रखती है वो अपने बी हाइव्स में, यानी कि अपने घर में रखती है. And flowers and their nectar may be available only for a part of the year. So we store these nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bee as honey. So the bees रहती है वो थोड़ा सा जो भी नेक्टर कनेक्ट करती है अपने, मतलब कन्वर्ट करती है, चूज़ करके अच्छे से सक करके, तो वो उसे अच्छे से स्टोर करती है अपने बी हाइव में, ताकि वो अगले 1 साल तक या उससे ज़्यादा चले. और उसी बी हाइव से हम लोग हनी निकाल करके खाते हैं, जो कि बीज कलेक्ट करते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू एनिमल ईट. Do you have cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, or a buffalo, or a goat? So, क्या आपके पास कोई पेट, यानी कि जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, buffalo या goat अवेलेबल है? You will surely be aware of the food that animal eats. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard, or small snake may be? So whatever pet you are having, you तुम सब अवेयर होगे कि उसे क्या खाना पसंद है. जैसे कि डॉग को पेडिग्री, काव को जो उसका बनता है फूड, गोट को घास फूस, तो ये पता. लेकिन क्या सभी को पता कि कभी किसी ने ऑब्जर्व किया कि स्क्वेरल क्या खाता है, यानी कि गिलहरी, कबूतर, छिपकली, या और स्मॉल इंसेक्ट कोई छोटा सा कीड़ा एज देयर फूड क्या खाता है. ओके, सो देयर इज एक्टिविटी 6. Activity 6. Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat. Okay, table 1.5 animal and therefore buffalo, grass, oil cake, hair, grains. Cat, small animals, birds, milk. Rat, cockroach, small animals, cheese, lion, um, big animals like cheetahs, or maybe small also tiger. Tiger also eats animal. Spider, don't know. Also eats insects. Cow eats oil cakes, hay, grains. Butterfly, human makes it food, vegetables, uh, fruit. Butterfly eats flowers, nectar. Crows eat insects, small insect. Others. So our activity is activity 1. Have a look at again at table 1.1. Group the animal entered here as follows. Place animal which eat only plant or plant produces in group 1. These are called herbivores. There are some animals which eat other animals. Place this in group 2. These animals are called carnivores. Do you find some animal which eat both plant and animal? Place them in group 3. These are called omnivores. Prepare a table in 1.1. Enter this spread. So cow is a herbivore which eats only grass and plant things. Lion is a carnivore. He also eats big animals and also eats plants. Dog, I mean lion is a carnivorous which only eats other animals' meat. Okay, so dog is an animal which eat meat also and as well as grass. Buffalo is a herbivorous. Cat is an omnivorous. Rat is an omnivorous. Lion is a carnivorous. Tiger is a carnivorous. I don't know. Lizard is a uh, carnivorous. Human means omnivorous.
butterfly, herbivorous, crow, carnivorous, or maybe omnivorous, etc. We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to one of us. So, as we know, हम लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सफिशिएंट यानी कि एक फिक्स अमाउंट में खाना नहीं मिल पाता है. सो इसके लिए हमें कुछ अच्छे से तरीके सोचने होंगे जिससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो बने और जो कि इनफ हो हम लोगों के लिए. और हमें इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एंड वी नीड टू इंश्योर दैट द फूड इज़ मेड ईजली एंड अवेलेबल. ये वो जो फूड बने वो इजीली बने और हम सभी के लिए अवेलेबल हो. सो द की वर्ड हेयर इज़ इंग्रेडिएंट. इंग्रेडिएंट मीन्स सामान, क्या क्या ज़रूरी सामान है आपको खाना बनाने में. एडिबल्स मीन्स जो भी चीज़ है आप चबा सकते हैं या फिर खाने लायक है उसे. नेक्टर हो जाता है फ्लावर का जूस जो कि हनी बी यानी कि मधुमक्खी जब उसे चूसती है यानी कि सक करती है और जो उसके डंक से मतलब सक होके जाता है स्वीट जूस उसे नेक्टर कहते हैं. स्प्राउटेड सीड, जब हम मूंग और चने को मतलब अच्छे से धो करके रात में दे देते हैं फिर उसे ड्राई कपड़े में रख देते हैं तो उसके सर मूंग या चने के छोटी सी पूँछ निकल जाती है वाइट कलर की, उसे हम कहते हैं स्प्राउटेड सीड्स. हर्बीवोरस जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं. कार्निवोरस जो कि मीट खाते हैं यानी कि एनिमल्स वगैरह तो उन्हें हम लोग कार्निवोरस कहते हैं. ओमनीवोरस जो कि मीट भी खाते हैं प्लांट भी खाते हैं तो उन्हें ओमनीवोरस कहते हैं. जैसे हम ही लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि जो ओमनीवोरस है मतलब कि प्लांट भी मतलब जैसे वेजिटेबल्स ही खाते हैं प्लस मटन वगैरह भी खाते हैं. फिर हम ही लोग में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो कि कार्निवोरस मीन्स हर्बीवोरस है जो कि प्योर वेज खाते हैं यानी कि प्लांट की चीज़ें खाते हैं फ्रूट वगैरह खाते हैं बट मीट नहीं खाते हैं मटन. ओके सो आज का इतना ही. एक्सरसाइज हम कल करेंगे. सो आई होप यू लाइक द चैप्टर एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक इट and subscribe the channel for more videos. I will upload a few more videos of this chapter, I mean the exercise and other chapter. And please press the bell icon if you like the video. Please like it and subscribe it. And if you don't like it, then what can I do? Bye bye, see you.